Good morning, dear children. I am Jasleen Kohli, your English teacher, and today we are going to start with the chapter The Lost Spring, which is taken from the book Stories of Stolen Childhood, written by Anees Jung. Now, children, you must know Anees Jung is an Indian writer, okay, and she writes a column in the newspaper where she voices her voice, where she tells about child labor, about how children are exploited. बच्चों को किस तरह मिसयूज़ किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है फैक्ट्रीज़ में, and their childhood is ruined. उनका बचपन किस तरह बर्बाद कर दिया जाता है. The title itself shows this. The title of the chapter, the poem, The Lost Spring. Now, what do we actually mean by spring? Spring is the season which is full of flowers, the season of blooming, the season, you can say, where the best of life is there. New flowers spring up, there is happiness everywhere. So childhood is compared to the spring season because childhood is also the best part of your life. Later on, when you grow up, you will realize that this is the precious time and no time in life can compare to childhood. Childhood में children are carefree, बचपना होता है, they are able to enjoy their life and they grow to the fullest. They learn a lot of things in life. But इसी एज में अगर बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाएँ, तो उनकी लाइफ का ये स्प्रिंग सीजन, द ब्यूटिफुल टाइम ऑफ देयर लाइफ इज़ ruined. Just as in this chapter, Anees Jung tells us about the children who are living in the slum area. जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, बहुत गरीब घरों के बच्चे होते हैं, who do rag picking, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, उन बच्चों की लाइफ जो है that is just like a lost spring. Their childhood is lost and ruined by the people. So there are two stories basically in this, and we are going to cover up the first story today. The first story deals with a character called Sahib-e-Alam. अब Sahib-e-Alam, the name itself means Lord of the universe, Raja, Maharaja you can say. But this child, ये जो बच्चा, ये राजा महाराजा नहीं है. He is a child who lives in a slum area and he is a garbage collector. The first story is sometimes I find a rupee in a garbage. So this is the story of Sahib-e-Alam. And first Anees Jung tells us the background of the story. She says that Sahib and his family, they have migrated from Dhaka. You all know Dhaka is in Bangladesh, and this family used to live in Bangladesh. They had a lot of fields, green fields, and they were living a happy life. But the only problem was that once there was, you can say, a natural calamity and their fields got destroyed. उनकी फील्ड्स में इतना नुकसान हो गया हवा की वजह से, विंड की वजह से, एक्सेस बारिशों की वजह से, दैट दे हैड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर. वो भूखे मर रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी लाइवलीहुड बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए फ्रॉम ढाका दे शिफ्टेड टू इंडिया. नाउ व्हेन दे केम टू इंडिया, ऑब्वियसली दीज पीपल आर इलीगल माइग्रेंट्स, सो दे विल नॉट गेट अ रेगुलर जॉब. जो इलीगली ऐसे माइग्रेट करके आते हैं, उनको ना तो जॉब मिलती है, ना रहने को जगह मिलती है. तो इन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि दे विल सेटल इन अ एरिया नियर सीमापुरी. Now, if you are aware, if you have been to Delhi, you must have seen Simapuri is right at the entrance of Delhi. Simapuri है क्या? ये एक वेस्ट लैंड है बेटा. दिस इज़ अ वेस्ट लैंड जहाँ पे सारा कूड़ा कचरा ला के दिल्ली का इकट्ठा किया जाता है. इट इज़ अ बिग ह्यूज गार्बेज डंप जहाँ पे सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है. एंड में इसको सेग्रीगेट किया जाता है, कुछ गार्बेज को बर्न कर दिया जाता है. सो सीमापुरी इज़ एट द एंट्रेंस ऑफ दिल्ली, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली यू कैन से. शहर से हट के पड़ता है और इसी गार्बेज एरिया के पास, इसी वेस्टलैंड के पास एक पूरा स्लम एरिया बसा हुआ है वेयर दीज फैमिलीज, दीज इलीगल माइग्रेंट्स दे लिव. अब जो ये यहाँ पे सीमापुरी में रह रहे हैं, इनको गवर्नमेंट ने कोई ऑथोराइज जगह नहीं दी है रहने के लिए. द ओनली थिंग विच दे हैव इज़ अ राशन कार्ड, एंड दिस राशन कार्ड इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द पॉलिटिशियंस. अब ये देखो आपकी पॉलिटिशियंस अपनी क्या पॉलिटिक्स लड़ते हैं. वो इन लोगों को एक राशन कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इन लोगों का खाना पीना सामान सस्ते दामों पे आता रहे. एंड इन रिटर्न दीज पीपल कास्ट देयर वोट्स टू द पॉलिटिशियन. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ वोट बैंक फॉर देम. पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ये जो राशन पानी रहने की जगह इनको मिल रही है, इसके बदले में ये हमें वोट दें. इसलिए वो उनको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, उस जगह से हटने नहीं देते हैं. और माइल्स एंड माइल्स तक सीमापुरी का ये जो आप कह सकते हो स्लम एरिया, ये फैला हुआ है. तो अनीस जंग अब इसी एरिया में एक दिन निकलती है. नाउ अनीस जंग हरसेल्फ बिलोंग्स, अनीस जंग द ऑथर ऑफ द स्टोरी, शी हरसेल्फ बिलोंग्स टू अ वेरी रिच एंड पॉश फैमिली. वो एक बहुत रिच फैमिली की है. वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकलती है. तो देयर शी सीज साहिब एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टिंग गार्बेज. तो शी सरप्राइज्ड कि ये इस उम्र में जब बच्चे स्कूल जाने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ये बच्चे गार्बेज क्यों कलेक्ट कर रहे हैं. सो शी क्वेश्चन साहिब, शी आस्क्स हिम
why don't you go to school, why are you doing this work? तो साहिब doesn't have a reply. साहिब को पता ही नहीं है, वो तो शुरू से बचपन से गार्बेज ही कलेक्ट करता आ रहा है, उसने कभी स्कूल लाइफ देखी ही नहीं है, he doesn't know about that. तो what is his prompt reply? All of a sudden वो क्या रिप्लाई करता है कि there are no school in my areas. How can I go to a school? There are no school in my areas. Now Anees Jung is also a very simple lady. She replies to Sahib and says कि अगर मैं आप तुम्हारे लिए, if I open a school for you in this area, will you join that school? Will you start going to school? So Sahib is full of enthusiasm and he says yes, I will join that school. अब अनीस जंग ने प्रॉमिस तो कर दिया, but it is not very easy to open a school in an area. It requires lot of funds, requires lot of planning. So after few days, when Anees Jung comes back to this area, Sahib meets her again. वो and this time Sahib questions her. साहिब उससे पूछता है, कहता है have you opened the school which you promised? And Anees Jung is so much embarrassed. उसे शर्म महसूस होती है कि मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों करा जिसको मैं पूरा कभी भी नहीं कर पाता, मैं कर ही नहीं सकती इसे पूरा. शी फील्स ashamed. Just to change the topic, she questions Sahib, what is your name? And Sahib replies, my name is Sahib Alam. Now this is very ironical. Ironical means it is very strange and doesn't suit the fact. Sahib Alam itself means Lord of the universe, दुनिया का राजा. और यहाँ पे दुनिया का राजा जो होना चाहिए वो क्या कर रहा है? ही इज़ अ गार्बेज पिकर. Just imagine, his name signifies that he is a king, but in actual he is a garbage picker who is collecting all the garbage. He doesn't even have slippers to wear. So how can this child be compared to a king? So now Anees Jung questions him, why don't you wear slippers? तुम्हारे पैर नंगे क्यों हैं? तुमने चप्पल शूज़ कुछ क्यों नहीं पहने हैं? And there are other boys also playing with Sahib. So when she questions him, they all give different excuses. One of them says कि मेरी मदर ने इतनी ऊपर रैक पे रख दिए थे शूज़, वो उतार ही नहीं पाई सुबह. The other, there's a child who is wearing different shoe on both feet. एक पे कोई जूता पहना है, एक पे कोई पहना हुआ है. And the third one says, I wish I had shoes to wear. बट अनीस जंग को क्या महसूस होता है कि ये बच्चे इतने गरीब हैं कि ये शूज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते पहनने के लिए. दे डू नॉट हैव मनी. और ये जो जिन्होंने पहने भी हुए हैं जूत पे, फटे हुए, टूटे हुए या डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़, ये सब कहाँ से उन्होंने कलेक्ट करे हैं? दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम द गार्बेज डंप. नाउ दीज रैक पिकर्स व्हेन दे गो टू कलेक्ट गार्बेज, जब ये कूड़ा कचरा कलेक्ट करते हैं तो उसमें इन्हें कई चीज़ें मिल जाती हैं जो इनके काम की होती हैं. जैसे स्टेशनरी आइटम्स मिल गए, दे फाइंड अ पेंसिल, समटाइम्स दे फाइंड अ कॉइन ऑल्सो. किसी ने 1 रुपये का सिक्का फेंक दिया, किसी ने गलती से कोई 10 रुपये का नोट फेंक दिया. फॉर दीज चिल्ड्रन इट इज़ लाइक गोल्ड. इनके लिए तो ये एक जिसे कहते हैं बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. 5 रुपये 10 रुपये कोई गार्बेज में मिल जाने, जैसे हमें गोल्ड मिल लेके खुशी होती है, हमें एक वैल्यूएबल चीज़ से खुशी होती है, इन बच्चों के लिए वही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है क्योंकि इन्होंने लाइफ में कभी कुछ देखा ही नहीं है. सो दिस रिमाइंड्स द ऑथर व्हेन शी सीज देम बेयरफुट. जब वो इन बच्चों को नंगे पैर देखती है तो उसको रिमाइंड होती है, वो याद करती है, रिकॉल करती है एक स्टोरी. उसको एक आदमी ने बहुत साल पहले, एक मैन हु हैड कम फ्रॉम उडुपी हैड नरेटेड अ स्टोरी टू अनीस जंग लॉन्ग लॉन्ग बैक. और उसने अपनी स्टोरी में क्या बताया था? उसने अपनी स्टोरी ये बताई थी, द मैन फ्रॉम उडुपी. ही सेड कि व्हेन आई वाज अ स्मॉल यंग बॉय आई वाज द सन ऑफ अ प्रीस्ट. मैं टेम्पल के पुजारी का बेटा हूँ, और जिस टेम्पल के पुजारी का मैं बेटा हूँ, मैं रोज़ उस टेम्पल में जाके गॉड को वर्शिप करता था, मत्था टेकता था और फिर अपने सुबह स्कूल जाता था. लेकिन उस टाइम में जब मत्था टेकता था भगवान को, मैं भगवान के आगे रियली क्या विश करता था कि काश मुझे एक जूतों का पेयर मिल जाए. इतनी गरीबी में रह रहा था वो बच्चा. मीन्स द प्रीस्ट का सन जो है, प्रीस्ट का बेटा जो है, वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो जूते पहन के स्कूल जा सके. तो उसकी हमेशा भगवान से विनती यही होती थी कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए. आफ्टर 30 years अनीस जंग वेंट बैक टू द सेम टेम्पल एंड व्हाट डिड शी फाइंड कि अब सिचुएशंस चेंज हो गई हैं. अब जो वहाँ के प्रीस्ट का बेटा है, ही इज़ वेयरिंग गुड क्लोथ्स, ही हैज़ गुड शूज़, ही इज़ कैरीज अ बैग विद हिम एंड उसके घर भी बहुत अच्छी बेटर सिचुएशन में है. तो अनीस जंग को क्या रियलाइज़ होता है कि कंडीशंस बदल गई हैं. लेकिन उसे दुख क्या होता है कि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आज तक शूज़ को, जूते पहनने को तरस रहे हैं. साहिब और उसके फ्रेंड्स जैसे बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो रैग पिकर्स हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ भी नहीं मिली हैं. तो हर हार्ट पेन्स, उसे बड़ा दुख महसूस होता है. ना वो थोड़ा सा आपको अनीस जंग और बैकग्राउंड बताती है. शी सेज दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. जब ये बांग्लादेश से यहाँ पे आए, इनके पास घर बार नहीं था, इन्होंने कच्चे घर बनाए.
जो गार्बेज में से इनको शीट्स मिलती थी, पॉलीथीन्स मिलते थे, उससे छतें बनाई अपनी, टूटे फूटे सामान से घर बनाए। और इन लोगों के पास आज भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनका कोई अस्तित्व, इनका कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है। ओनली प्रूफ दे हैव इज़ अ राशन कार्ड। वो राशन कार्ड भी किसने प्रोवाइड करा है? पॉलिटिशियंस ने इनको प्रोवाइड करा है, गवर्नमेंट ने नहीं करा है। वो पॉलिटिशियंस क्यों प्रोवाइड करते हैं राशन कार्ड? ताकि इट इज़ अ वोट बैंक फॉर देम, ये गरीब लोग उनको वोट दे सकें। और ये गरीब लोग इतने इस चीज़ में फंस चुके हैं, इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। व्हेन शी क्वेश्चंस द पीपल, जब अनीस जंग आके लोगों से क्वेश्चंस पूछती है उस एरिया में, पता करती है उनकी लाइफ के बारे में, तो वो उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह हम ढाका में गरीबी से, भुखमरी से मर रहे थे और हम यहाँ पे सीमापुरी आ गए अपनी लाइफ जीने के लिए। बट वी आर हैप्पी हियर, हमें तो खाने को मिल जाए 2 टाइम, हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। इट मीन्स जो ये लोग हैं, ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच भी नहीं है इनकी। इनके लिए सिर्फ 2 समय का खाना मिल जाना, कपड़े मिल जाना, एक छत मिल जाना, वही लाइफ है। ये कभी भी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे अगर आज पढ़ लिख जाएंगे तो कल शायद वो लाइफ में अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे, हमें भी इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। दिस इज़ बियॉन्ड देयर थॉट्स, उनकी इमेजिनेशन से बाहर है, उनकी इतनी सोच ही अभी तक नहीं बनी है। सो दिस अनीस जंग रिफ्लेक्ट कर रही है कहीं पे अबाउट द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ दीज पीपल। और साहिब आलम जैसे बच्चों को क्या कहती है, ये जो गार्बेज कलेक्शन है बड़ों की मजबूरी है, बच्चे जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि तुमने यही काम करना है, तुम्हारी लाइफ यही है, हमारे बाद तुम ये काम करोगे। इट इज़ लाइक अ फैमिली लीनेज कि जो फोर फादर्स कर रहे थे वही उनके आगे बच्चे करेंगे। तो साहिब फाइंड्स अ 1 रुपी कॉइन एंड ही इज़ सो एक्साइटेड। जब उसे गार्बेज में कभी 1 रुपये का सिक्का, कभी कोई टूटे हुए जूते, कभी कोई भी चीज़ मिल जाती है, वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए क्या है, ये खजाने की तरह है। फॉर हिम इट इज़ अ ट्रेजर, he feels very happy, he is satisfied with that. One day अनीस जंग क्या देखती है, इट इज़ अ विंटर मॉर्निंग एंड शी सीज कि साहिब आलम जो है वो किसके बाहर खड़ा हुआ है, वो एक गार्डन के बाहर खड़ा है। एंड देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग विद हिम एंड ही इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़। तो शी सरप्राइज कि ये टेनिस शूज़ इसके पास कहाँ से आई है, तो इतना गरीब है। तो साहिब आलम उसे क्या रिप्लाई करता है, साहिब आलम कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये टेनिस कोर्ट बंद हो जाए, उसके बाद मैं अंदर जाके झूले झूलूंगा, और ये टेनिस शूज़ मुझे किसी ने दान में दिए हैं, किसी ने मुझे डोनेट करे हैं। बट एक्चुअली ये टेनिस शूज़ उसको किसी ने डोनेट नहीं करे, उसे कहाँ से मिले हैं, गार्बेज में से मिले हैं। तो इन बच्चों के लिए जो गार्बेज में टूटी फूटी लोगों की डिस्कार्ड करी हुई चीज़ें हैं, वो इन बच्चों के लिए एक प्रेशियस एसेट है, इनके इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, जिनको ये बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। मतलब आप लोगों की फेंकी हुई चीज़ किसी के लिए एक प्रेशियस चीज़ भी बन सकती है। इट ओनली डिपेंड्स कि हमारी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन में कितना कितना फ़र्क है। हम वैल्यू नहीं करते, एक शू में थोड़ा सा छेद हो गया, थोड़ा सा फट गया, वी जस्ट थ्रो देम अवे कि ये अब हमारे काम का नहीं है। लेकिन उसी शू को साहिब जैसा एक बच्चा पहन के फील करता है कि उसे दुनिया की, उसकी ड्रीम पूरी हो गई, उसे दुनिया में जो वो चाहता था, उसकी उम्मीद ही इतनी थी कि मुझे पहनने को एक जूते मिल जाएँ, एक अच्छे कपड़े मिल जाएँ। तो the thing which has no meaning for you might be something very very valuable for them. अब कुछ दिनों बाद अनीस जंग जो देखती है फाइनली साहिब को, she sees him going around to the milk booth. वो मिल्क बूथ, उसके बैक में एक हैवी कैनिस्टर है, एक बड़ा सा लोहे का बर्तन है जिसमें वो दूध कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो अनीस जंग सरप्राइज कहती है, तुम्हारा वो जो बैग था जिसमें तुम, जो तुम्हारा रैग पिकिंग बैग था जिसमें तुम कूड़ा कचरा गार्बेज इकट्ठा करते थे, वो कहाँ गया? तो साहिब सेज कि अब मैंने रैग पिकिंग बंद कर दी है। आई हैव बीन एम्प्लॉयड एट अ टी स्टॉल, मुझे एक टी स्टॉल वाले ने एम्प्लॉय कर लिया है। ही विल गिव मी 800 रुपीज़, 800 रुपये महीने के देगा, साथ में खाना भी देगा। तो साहिब इज़ हैप्पी इन अ सेंस कि अब मेरी एक पक्की नौकरी मिल गई है। बट अनीस जंग फील करती है कि दैट ही हैज़ लॉस्ट द चार्म ऑन हिज फेस, ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस ऑन हिज फेस। उसका जो वो केयर फ्री एटीट्यूड था वो ख़त्म हो गया है। वो मिल्क कैनिस्टर उसके उस रैग बैग से कहीं कहीं हैवी है। इसका एक मेटामॉर्फिकली मीनिंग क्या हो सकता है कि अर्लियर व्हेन साहिब वाज वर्किंग एज अ रैग पिकर, ही वाज डूइंग इट एट हिज ओन विश। वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था, वो अपना राजा था अपने काम का, उसका कंट्रोल था अपने ऊपर, वो किसी का गुलाम नहीं था। बट अब वो क्या है, अब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है, ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय समबडी, सो हेयर ही हैज़ टू वर्क अंडर समबडी। उसकी वो कि ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अपना राजा नहीं रहा है। आज वो किसी, चाहे उसे 800 रुपये मिल रहे हैं, पर आज वो किसी का गुलाम बन गया है।
बट यहाँ पे पैथेटिक सिचुएशन अनीस जंग ने क्या बताई है कि ये बच्चे इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करते, ना उनके पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं, ना बच्चे रियलाइज़ करते हैं, ना वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और ना ही वो कोई एफ़र्ट कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन से, अपने जिस माहौल में हम रह रहे हैं उससे बाहर निकलें, हम पढ़े लिखें, हम कोई एफ़र्ट करें। तो ये सोसाइटी का ये जो स्ट्रेटा है, द स्लम्स, द अंडर प्रिविलेज्ड, दिस विल रिमेन लाइक दिस फॉर लॉन्ग इफ़ नो एफर्ट इज़ मेड बाय एनीवन। सो दिस इज़ समथिंग विच वी ऑल हैव टू रिफ्लेक्ट कि किसकी गलती है यहाँ पे। पेरेंट्स की गलती है, उन बच्चों की गलती है, उनकी सर्कमस्टांसेस ख़राब है, और इन सिचुएशंस को हम इन फ्यूचर कैसे सुधार सकते हैं। इन बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है एजुकेशन की, क्या इन बच्चों को लाइवलीहुड के अच्छे मीन्स दिए जा सकते हैं ताकि इनका जो बचपन है वो बर्बाद ना हो, इनका स्प्रिंग लॉस्ट स्प्रिंग ना रह जाए। थैंक यू।